ओके। ओके बच्चे, लेट मी आस्क यू, हाउ इज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद डेकोरेटेड? With tiles, okay. I will get only one word answer, right? Right, Ayan Ali? With 20,000 ceramic tiles. And what else? You can check the answer from here, bache. Look at it and then answer the question. जी। The interior of the masjid, the lower end is lined up with more than 20,000 handmade ceramic tiles and more than 50 different tulip designs. Right, and then at the gallery level, the design becomes flamboyant with representation of flowers, fruits, and cypresses. Cypress is a kind of tree, right? वो जो छोटा ट्री होता है जिसमें जो कोन्स की तरह जो है उसमें वो लगते हैं, उसके जो होते हैं ना, फल जो होता है, फल तो नहीं कह सकते लेकिन वो जिस चीज उसका जो फ्लावर होता है वो उसकी तरह होता है, जैसे कोन नहीं होता उसकी तरह, ठीक है। ये वो है, ट्री है। अच्छा जी। यस, यू विल टॉक अबाउट द chandelier as well, okay, and the blue glass stained windows. You will talk about this as well. Is that clear, bache? Okay, let's move to the next question. What is the most important element of the masjid and what is it meant for? G. What is the most important element of the masjid? Very good. And what is it meant for? What is it meant for, bache? The imam stands there in order to show the direction of the Qibla. The people can see the Imam when he stands in the mihrab. No, bache, this is not the answer. The answer is that it shows you the direction of Khana Kaaba. Okay, it shows you the direction of Qibla. Is that clear? Okay. The next one is write meanings of the underlined words. Now, what impression of the blue masjid do you have from the passage? Okay, write down your own opinion. Okay, write down your own opinion. You can write down the main point, main chunks of the uh, information. Your own opinion. You have to write down your own opinion in 2 to 3 words. I'll get the idea. ठीक है? No need to write down the complete sentences. What is your impression about Blue Masjid? You should write it in your own words. Okay, let me call Ma'am Shagufta and ask about Hadi and. Okay, bache, can you please give me 2 minutes? Very well done. Okay, just give me 2 minutes, okay? Assalamu alaikum, Abdullah. How are you? Okay, okay, bache. We were discussing the paper, ठीक है, the third set which was still left. अच्छा, which was still left, so we were discussing the questions which are still left. Okay, so write down the meaning of the underlined words. जी बच्चे, Abdullah, tell me the meaning of architecture. Design of a building, and yes, you, Ayan. Yes, structure, art of constructing building.
स्प्लेंडर, सॉरी स्प्लेंडर नहीं, मैग्नीट्यूड, no. Check the bache contextual meaning. In the center, there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. Courtyard is so big that in contrast to that, it seems small. Due to the magnitude of the courtyard, it seems small. Now tell me the answer. Magnitude direction is incorrect, bache. Don't decorated is correct. Okay, Ayan? Your second answer is incorrect. Magnitude means vastness. Clear? Abdullah, are you getting me, bache? Abdullah, do you have pencil and piece of paper or rough copy? लेकर आए बेटा, जब भी आया करें क्लास लेने अपने साथ पेंसिल पेन कॉपी रखा करें, ताकि यू हैव टू नोट डाउन दी मीनिंग्स दी आंसर्स, ओके, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको फिर खुद ही से पढ़ें तो आपको फिर याद रहे. ओके ओके बच्चे, लेट्स मूव टू दिस stanza. You are unable to paraphrase it, so let's move to the question answers. Question number 3 ka B part. Read the following stanza carefully and answer the questions given at the end. I wandered lonely as a cloud. Identify and write any two poetic devices used in the stanza. It's very easy. Personification, dancing, and wandered lonely as a cloud. This is simile, right? Which two things have been compared in the first two lines of stanza? Which two things have been compared in the first two lines of the stanza? Ji Ayan, can you tell me the answer, bache? कौन कौन सी चीजों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया गया है इन दी फर्स्ट टू लाइंस ओनली? The cloud and the poet, they have been compared same like a cloud, same like a lonely cloud that floats with his wish over valleys and hills. The poet also walks aimlessly along the lake, right? Ayan Ali, turn on the camera, bache. Abdullah, where are you, bache? Why have you turned off the camera? Come back. Abdullah, come back, bache. Okay. Ayan Ali, did you get me? The poet and the lonely cloud has been compared same like a lonely cloud that floats without his wish over vales and valleys. Okay. Acha, Abdullah, you have to answer first question. Identify and write any two poetic devices used in the stanza. Read this stanza and tell me about the two poetic devices used in this stanza. Where is personification? In the breeze. Very well done. What about second poetic device? What is this as a cloud? Abdullah, what is this? Simile. In simile, we use same, like, as, like. Yes. हाँ जी, ये सारे पोइटिक डिवाइसेस में आते हैं, ठीक है ना? अच्छा जी. सेकंड क्वेश्चन इज राइट टू थिंग्स, विच टू थिंग्स हैव बीन कंपेयर्ड इन द फर्स्ट टू लाइंस ऑफ स्टैंजा. जी अब्दुल्ला, किस चीज को डिस्कस किया गया है इन द फर्स्ट टू लाइंस? आई वांटेड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. किन दो चीजों को, वो किसके बारे में बात कर रहा है? किसकी लोनलीनेस? किसके साथ है? कौन है? और अलोन कौन है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं पोइट अपने आप को? हाँ, नहीं बेटा, ये डेफोडिल्स वाली पोम है. ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है.
हाँ जी, तो कंपैरिजन किसका हो रहा है? आई का, जो पोएट है क्लाउड के साथ। सो द पोएट एंड द क्लाउड have been compared, same like a lonely cloud which floats over vales and valleys without his wish, with his wish, without his wish, and the poet also walks aimlessly along the nature. ठीक है, write down this answer. Abdullah, write down this answer, बच्चे. You will forget next time. I ask you about it. No, write down the answer. Cloud and the poet have been compared, same like a lonely cloud, same like a lonely cloud that floats high over valley and hills. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी, जी हो गया बच्चे. Same like a lonely cloud that floats without his wish over valleys and hills, the poet also walks aimlessly along nature. Ayan Ali, turn on your camera, बच्चे. अच्छा जी, write the rhyme scheme of this stanza. Abdullah, do you know the rhyme scheme? The poet also walks aimlessly, aimlessly along nature. जी, Abdullah, tell me the rhyme scheme, बच्चे. Rhyme scheme of same stanza. देखो बेटा, सबसे पहले आ गया ड, क्लाउड का ड आ गया साउंड. ठीक है, इसको आप दे दोगे, जो पहली लाइन होती है उसको हमेशा आप राइमिंग स्कीम में देते हो नाम ए का. लिखिए, क्लाउड के सामने लिखिए ए. ठीक है. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. क्या हिल्स और क्लाउड मैच करते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड अयान. नहीं कर रहे ना? क्लाउड और हिल्स मैच करते हैं? नहीं करते. राइम नहीं कर रहे ना, तो हिल्स को दें आप बी का नाम. बेटा, स्टेंजा जो दिया होता है ना, उसका लास्ट लास्ट वर्ड आप लास्ट लास्ट वर्ड आपने पढ़ना होता है. ठीक है, जैसे यहाँ क्लाउड है. नहीं नहीं नहीं, सिर्फ लास्ट वाला, जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसको आप पढ़ेंगे. अगर वो पहला वर्ड जो होगा उसको हमेशा आपने ए का नाम देना है. दूसरा, अगर उसी की तरह अगर यहाँ पर क्राउड सेकंड नंबर पर होता तो हम कहते क्लाउड और क्राउड मिलता है तो ए और ए होता, लेकिन यहाँ क्राउड थर्ड पे है, फर्स्ट सेकंड पे नहीं है. तो इसलिए हिल्स चेंज है. तो पहला ए हो गया, दूसरा बी हो गया. ठीक, हिल्स क्या हो गया? बी. ए बी. क्राउड और क्लाउड मिलते हैं तो क्राउड और क्लाउड सेम है, तो क्लाउड को हमने ए का नाम दिया तो क्राउड को भी हम ए का नाम देंगे. अब्दुल्ला, समझ आ रही है? फिर आ जाता है डेफोडिल्स. हिल्स और डेफोडिल्स मिलता है तो हिल्स को हमने बी का नाम दिया. ये दोनों राइम करते हैं ना, तो जो राइम करेंगे उनको सेम नाम देंगे. हिल्स को बी का नाम दिया, डेफोडिल्स राइम कर रहे हैं, उसको भी बी देंगे. समझ आई? ए बी, ए बी. अब मुझे आप तीसरी और चौथी लाइन आप बताओगे मुझे. ट्री और ब्रीज का आप बताओगे. ए बी, ए बी. अब डेफोडिल्स. वेरी वेल डन.
क्योंकि ना डी से मिलता है ये ना डिल से मिलता है, तो इसका मतलब है वो चेंज है, राइम नहीं कर रहे, तो ये सी हो जाएगा, क्योंकि ट्री और ब्रीज मिलता है, तो इसलिए ये सी सी हो गया। अब इसकी राइम स्कीम क्या बन गई, ए, और ये सारे कैपिटल में आपने लिखने हैं, A B C ठीक है, समझ आ गई बेटा? अच्छा जी, अब नेक्स्ट वन की भी आप करेंगे। राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएटिक एक्सट्रैक्ट। जो पोएटिक एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है उसकी राइम स्कीम लिखें। कहाँ गए साथ? साथ चले गए वापस? अच्छा जी बेटा, हर्ड एंड स्टॉर्म। हर्ड की क्या होगी राइमिंग स्कीम में, क्या हो गया उसका सबसे पहला? ए। स्टॉर्म का क्या हो गया, क्या हर्ड और स्टॉर्म मिलते हैं? वेरी गुड, तो फिर हर्ड और बर्ड मिलते हैं? हाँ, A B A, वॉर्म एंड स्टॉर्म मिलते हैं, राइम करते हैं। हाँ, A B लैंड और बर्ड करते हैं। हाँ, तो फिर ए आ गया, A B A आ गया। वॉर्म और सी करते हैं राइम, तो फिर ये आ गया सी। फिर एक्सट्रीमिटी करता है लैंड के साथ, वॉर्म के साथ नहीं, ये आ गया डी। मी और सी करते हैं, करते हैं ना मी और सी, तो ये आ गया सी। ठीक है, इसकी राइम स्कीम क्या आएगी? देखो सी। बेटा, वर्ड अलग है, साउंड हमने राइम सुनना है इनका। अगर वो राइम करते हैं, सेम साउंड दे रहे हैं, वर्ड्स को नहीं चेक करना, लेटर्स को नहीं चेक करना, हमने साउंड को चेक करना है। ठीक है, अब क्या इसकी राइम स्कीम बनी? बी ए बी ए सी डी सी। समझ आई? अच्छा जी। अयान, डिड यू गेट इट बच्चे? अयान, समझ आ गई बेटा? अच्छा जी, अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्री। ओके। अब मुझे ये बताइए, डू यू नो कि आइडेंटिफाई राइट एनी टू पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस स्टैंजा। कैन एनीबॉडी टेल मी विच पोएटिक डिवाइस has been used in this stanza? जी। अयान अली अब्दुल्ला, कैन यू टेल मी which poetic devices हैं? हाँ, ये क्या है? कैसे? कैसे बेटा? ठीक है, वेरी गुड, नेक्स्ट। चिलियस लैंड जो है आपके पास हाइपरबले हो गया। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आ जाता है, व्हाट डज द स्टॉर्म डू विद द बर्ड। यहाँ लिखा है द सोर मस्ट बी द स्टॉर्म, यानी स्टॉर्म इतनी शदीद हो सकती है दैट कुड अबैश द लिटिल चाइल्ड। मतलब ये कि वो लिटिल बर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टॉर्म डू विद द बर्ड? हाँ, इट कैन किल द बर्ड। अगर हम रेफर करें स्टॉर्म को होपलेसनेस के साथ और बर्ड को विद होप के साथ, बिकॉज द नेम ऑफ दिस पोम इज होप। ओके, ये जो पोम है ये बलूचिस्तान बोर्ड की बुक से ली गई है, और इस पोम का नाम है होप, और इसके 3 स्टेंजाज हैं। ठीक है, डू यू वांट मी टू मेक यू राइट डाउन द पैराफ्रेजिंग ऑफ ऑल 3 स्टेंजाज, यस और नो? इफ यू आर विलिंग देन आई विल टेल यू। ठीक है, ओके, क्योंकि आपका पता नहीं चलता कि कौन सी आ जाए। वैसे तो होती है चॉइस, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर लक। ठीक है, अगर आपकी लक अच्छी है तो आपके पास तो जाहिर है दोनों में फिर ये होगा कि एक आपकी आएगी एक उधर से आ जाएगी, लेकिन इफ यू हैव बैड लक तो कुछ पता नहीं चलता, एक बलोचिस्तान से आ जाए और एक KPK से आ जाए। वैसे ऐसा होता नहीं है, अगर आप ही एक ही बुक को तैयार कर लो तो आपका पेपर हो सकता है उसमें से। ठीक है, तो चले फिर मैं आपको ये जो है ना तीनों के स्टेंजास की पैराफ्रेजिंग करवा दूंगी। ओके यान अली, ओके अब्दुल्ला? ठीक है अब्दुल्ला, समझ आ रही है बेटा? अब्दुल्ला इज टू टायर्ड। अब्दुल्ला को नींद आ रही है, आज सोया नहीं है अब्दुल्ला, लगता है इफ्तार के बाद है अब्दुल्ला।
अच्छा जी, fill in the blanks to complete the process of planting tree. Use a passive voice form of the verb. जी बच्चे, अब्दुल्ला आप बताइए द फर्स्ट वन. When you start plantation, ensure the root ball is soaked through. Soak पे क्या आएगा? ये पैसिव है, इस लगा हुआ है, तो which form of verb we are going to use? Yes, the verb is soak. You will change it into the third form because helping verb is there and you are gonna use third form of the verb in the passive voice. When you start plantation, ensure the root ball is soaked through, as a dry root ball could reject water from the surrounding soil. A seaweed product is added to the water to help the tree avoid transplant shock and to improve root growth on going forward. A hole is digged that's at least twice the size of the existing ball. Depth is more important than width in most cases, so be sure to dig enough a hole that the existing roots can be completely. यहाँ पर कैन बी आ गया है, तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, बी लग गया, तो थर्ड फॉर्म का वर्ड आ जाएगी. योर सॉइल इज इम्प्रूव टू हेल्प द प्लांट सर्वाइव इन द लॉन्ग टर्म. इन क्ले सॉइल्स some gypsum is to improve the soil structure. If all soil is good, fertilizer is used. Very well done. Okay ji, the next one is use the suitable form of the verbs in the given sentences. My cat be fond of traveling. बी की जगह पे कोई भी बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. इज, एम, आर, वाज, वर, बी. ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं. नोट इट डाउन बच्चे. अब्दुल्ला नोट देम डाउन. बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स आर ओनली 7. जहां पर भी बी लिखा आएगा आपने उधर ये फॉर्म्स लिखनी है. इज, राइट इट डाउन अब्दुल्ला. बी, बी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखिए. बी ई बी. ये क्या है बेटा? ये क्या है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला जस्ट से इट अलाउड. बी. ये क्या है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है? व्हाट इज दिस? बी है. तो बी फॉर्म आपको पता है कौन सी होती है? तो लिखे ना, ऊपर लिखे बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स. बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स. Let me use the headphone, okay? Then tell me either my voice is clear or no. जी बच्चे, is my voice clear? Are you listening to me? बच्चे, is my voice clear? Okay, तो अब्दुल्ला को नहीं आ रही? अच्छा, तो बोले ना बेटा. हाँ जी. अच्छा, नाउ. अच्छा जी, चलें लिखें बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स. देयर आर 7 बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स. इज, एम, आर, was, were, be and been. B-E-E-N. Was, were, be. B-E-B. B-E-B. जैसे यहां पर आया हुआ है देखो, रूट्स कैन बी. ठीक है, तो बी भी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है. और बीन, B-E-E-N, बीन, सातवीं बीन है. B-E-E-N, बीन. गॉट इट? अब्दुल्ला समझ आ गई बेटा? अयान आपको समझ आ गई है? अच्छा जी. ओके जी. नाउ टेल मी. Okay. Now tell me, my cat dash fond of traveling. My cat is fond of traveling. You can use is, right? Very well done. I usually get up at 5 a.m. in the morning, but yesterday I get up at 7 a.m. Now they have mentioned the time. So which verb you are going to use? Got up. यहाँ पर अगर yesterday ना होता तो फिर आपने लिखना था I have gotten up, right? I have got up. Gotten तो अब obsolete हो गया है, लेकिन got ही लिखा जाता है. ठीक है, वरना पहले gotten भी लिखा जाता था. If he had worked hard, he succeed. Now had worked is written.
he would have succeeded. Very well done. Saad Rao. Bache, turn on your camera. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम बेटा। साथ में वही सर हूँ। पेपर ही हो? मैम वो तैयारी कर रहा था, ये पता नहीं था क्लास की। अच्छा ठीक अच्छा है, तो ठीक है, तो किस चीज का पेपर है पेपर है मैम, सर? का पेपर है? कल उर्दू का पेपर है। हम्म। हम्म। ठीक है, चलो ठीक है, सही है। चलो सही है। अच्छा जी। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही सक्सीड, ही वुड हैव सक्सीडेड, क्योंकि यहाँ परफेक्ट आया है तो आगे भी परफेक्ट आएगा। ही गो टू लंदन टुमारो मॉर्निंग एट 5 o'clock। जी अब्दुल्ला। टुमारो टुमारो टुमारो। विल गो टू आना चाहिए, लेकिन यहाँ विल गो टू नहीं आएगा। क्यों? साथ बताएंगे। यस। जी मैम। यहाँ क्या आना चाहिए बेटा? ही गो टू लंदन टुमारो मॉर्निंग। मैम विल को ही आएगा, और क्या। नहीं बेटा, आई एक्सप्लेन इट टू यू। He is going to London tomorrow morning at 5 p.m. because जो प्री प्लान्ड चीजें होती हैं, जो प्री प्लान्ड प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें is going to यूज होता है। will हमेशा इंस्टेंट डिसीजन के लिए यूज होता है। सही इज है दैट मैम। क्लियर? जैसे आप कहते हो कि आई एम गोइंग टू गो टू द लाइब्रेरी आफ्टर 2 days, आपकी प्री प्लानिंग है। ठीक है? या फिर आप कहते हो कि आई विल प्रिपेयर माई पेपर ऑन वीकेंड, अभी आपकी प्री प्लानिंग है, इज गोइंग टू लगेगा। विल तब लगता है जब आप इंस्टेंट डिसीजन लेते हो। ठीक है? जैसे आप कल की बात कर रहे हो तो आप कहते हो आई विल गो टू लंदन। ठीक है? पर उन्होंने चूंकि पहले से प्लान किया हुआ है कि दे विल लीव फॉर लंदन मॉर्निंग एट 5 o'clock, ये प्री प्लानिंग है, तो इसलिए यहाँ पर इज गोइंग टू आएगा। अब्दुल्ला, डिड यू गेट इट और नो? अयान अली? ओके अयान अली, यू जस्ट शेक योर हेड। ओके, nod your head. It rains since morning. It मैम rains. इट वाज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, नहीं इट इज रेनिंग, इज रेनिंग, इज रेनिंग। Very well done अयान। वेरी वेल डन। हैज वो बिन। हाँ जी, यहाँ सिंस लगा हुआ है। डू यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू वेयर इज द मेंशनिंग ऑफ टाइम विद द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, यू आर गोइंग टू यूज द परफेक्ट टेंस। यस क्योंकि ये मैम। मॉर्निंग है तो इसका मतलब है करीब है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। इट हैज बीन ट्रेनिंग सिंस मॉर्निंग। जी मैम। ठीक है। अच्छा जी। नो सूनर हैड आई हर्ड द नॉइज देन आई रश टू द स्पॉट। जी। had I rushed ed। वेरी वेल डन। वाई? ओके मैम अब्दुल्ला हैड विल। हैड पहले आ चुका है और पास्ट है तो। वेरी वेल डन। पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है तो सेकंड में सिंपल पास्ट यूज होगा। आई पे माई इलेक्ट्रिक बिल बाय द 10th ऑफ एवरी मंथ। मैम पे ही होगा, है पे। अब्दुल्ला बताएंगे जी। अच्छा, आप कह रहे पे होगा, चले मैं बताती हूँ अभी। अब्दुल्ला आप बताइए। ये मेन वर्ब के अलावा? नहीं, वो इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने यहाँ पर टू कहाँ लगाया? हमने हमने तो टू कहीं भी नहीं। यहाँ पर हमने बी पे होगा क्योंकि वो रूटीन एक्टिविटी बता रहा है ना, जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मतलब मैं हर महीने की 10 तारीख तक बिल जमा कर देता हूँ बिजली का, तो मतलब उसकी एक्टिविटी है। जो रूटीन एक्टिविटीज होती हैं तो वो हमेशा वैसी ही प्रेजेंट टेंस में यूज होती हैं, तो यहाँ चूंकि ऑलरेडी उन्होंने प्रेजेंट टेंस यूज किया हुआ है तो इसलिए वो रिमेन रहेगा। ठीक है? आई पे माई। नहीं, वो अगर टुमारो होता या फिर कुछ और इस तरह वर्ड यूज हुआ होता जिसमें फ्यूचर की बात होती तो फिर भी होगा। ठीक है? इसलिए यहाँ कोई फ्यूचर की बात नहीं, उन्होंने कहा हर महीने मैं बिजली का बिल भरता हूँ। अच्छा जी। पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ लाइन। जी बच्चे। कॉमा आएगा। अच्छा ठीक, नेक्स्ट। मैम फिर हैवेंट है।
और I अच्छा, haven't यहाँ कॉन्ट्रैक्शन आएगा, haven't communicated with them। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स कहीं नहीं आएंगे। no, मैम ये I haven't communicated with them पे आएंगे। ठीक है, एंड अयान अली, आप क्या कहते हैं? जी अयान, आप बताइए। अयान लिख कर बता दीजिए बेटा। Where we are going to use a punctuation? जी अब्दुल्ला, आप सेम कह रहे हो कि नो सर के बाद कॉमा आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमास कहीं भी नहीं आएंगे, फुल स्टॉप आएगा और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन आएगी। तो ये कितनी हो गई? नो सर के बाद कॉमा लगाएं, वन पंक्चुएशन। कहाँ आएंगे? क्यों? जी इन्वर्टेड कॉमास बेटा नहीं आ सकते हैं ये, लेकिन यहाँ चूंकि एक ही डायलॉग है, ठीक है। नो सर आई हैव नॉट कम्युनिकेटेड विद देम, इसका मतलब है कि किसी एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा है और ये उसका आंसर कर रहे हैं, तो ये एक ही डायलॉग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास आएगा इन्वर्टेड कॉमास, नो सर के बाद आएगा कॉमा, फिर आपके पास आ जाएगा हैवेंट का ये थ्री हो गया, फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ फुल स्टॉप फोर, और ऊपर इन्वर्टेड कॉमास आ जाएगा फाइव, ठीक है। और नो के बाद जो है हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगता है या सिर्फ कॉमा भी लगता है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास ये है, और ये सर का एस हमेशा बड़ा होता है, कैपिटल होता है, स्मॉल नहीं होता, ठीक है। लेकिन चूंकि ये पूरा एक डायलॉग है तो इसलिए इसके बाद कॉमा नहीं लगेगा, सर के बाद कॉमा लगेगा और सर का एस भी बड़ा होगा, तो 6 आपकी पूरी हो गई। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुए, सर का एस बड़ा किया, हैमर्ड का ये तीन, चार, हाँ जी 6 होती है इसीलिए 3 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं जरा चेक करूँ, फर्स्ट कॉमा दी कॉन्ट्रैक्शन इन्वर्टेड कॉमा देन द क्लोज एंड फुल स्टॉप, जी बच्चे ऐसा ही है। अयान अली आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। ओके जी, पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन का पैराग्राफ आप नहीं लिख कर लाए अब्दुल्ला, बेटा आपकी अब ये पनिशमेंट है कि आपने दोनों पर जो है ना पैराग्राफ लिख कर लाना है, माई कंट्री पर भी एंड पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन पर भी, ठीक है। अच्छा, और अयान अली ने शेयर नहीं किया, तो इसलिए अयान अली आपके ऊपर भी ये बेटा पेनल्टी है कि आपने भी दोनों पे पैराग्राफ लिखना है, आपने एक लिख लिया है, दूसरा जो है आपने इस पे लिखना है माई कंट्री पर। जी बच्चे, पंक्चुअलिटी रेफर्स टू द हैबिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कंप्लीटिंग देयर टास्क ऑन टाइम, हु विल ट्रांसलेट इट? जी अब्दुल्ला, ट्रांसलेट करें बच्चे, पंक्चुअलिटी किसको कहते हैं? बाकायदगी को, रेफर्स। ठीक है, अब इसको सही पूरा एक सेंटेंस बनाएं। बाकायदगी इंसान की वो आदत है जिसमें वो अपने काम टाइम पर पूरे करता है। इट इज ए पॉजिटिव हैबिट, ये एक मस्बत आदत है, विच श्योरली लीड्स टू सक्सेस, जो कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। ऑल पीपल हैव 24 आवर्स एट देयर डिस्पोजल, हर तमाम लोगों के पास कोई भी काम मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे होते हैं। सम कंप्लेन दैट दे हैव नो टाइम, कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है। सम से दैट दे हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, जबकि कुछ ये कहते हैं कि उनके पास बहुत से फुर्सत के लम्हे हैं। सम लीव देयर वर्क इनकम्प्लीट, कुछ अपना काम अधूरा छोड़ देते हैं नहीं छोड़ते हैं, एंड ब्लेम, और फिर ये इल्जाम लगाते हैं दैट दे कुड नॉट फाइंड इनफ टाइम, कि उनको फारिग टाइम नहीं मिला। वी शुड लर्न टाइम मैनेजमेंट इन अवर लाइफ, हमें वक्त की पाबंदी सीखनी चाहिए, अपनी जिंदगियों में वक्त की पाबंदी सीखनी चाहिए। समझ आ गई अब्दुल्ला?
साथ अयान अली, आर यू गेटिंग मी बच्चे? ठीक है, अब आपने माई कंट्री के ऊपर डायलॉग लिखना है। अच्छा जी, और अब्दुल्ला आपने दोनों पर डायलॉग लिखना है, ठीक है। मैं अभी ही जो है ग्रुप पर शेयर कर देती हूँ कि आप लोगों ने इसके ऊपर जो है ना माई कंट्री, पैराग्राफ, सॉरी, माई कंट्री एंड पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन, पाकिस्तान डे है, ठीक है। रोल नंबर को भी यहाँ बबल्स को फिल करना होता है और रोल नंबर लिखना होता है। अब्दुल्ला बच्चे, दिस इज द लास्ट ईयर फाइनल पेपर, ठीक है। जो पिछले साल का ये बोर्ड का पेपर आया था ना, ये वो पेपर है, ठीक है। अब्दुल्ला समझ आ रही है? सो लेट्स दिस है। हाँ जी, ये देखें यहाँ पर आ गया वर्जन नंबर, ठीक है। वर्जन नंबर में आपको, जी, ये बबल्स को फिल करेंगे आप। यहाँ पर चार है, चार है, ठीक है। ये इसलिए, ये क्वेश्चन नहीं बेटा, ये वर्जन नंबर है। आपके पेपर्स पे डिफरेंट वर्जन नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो इसलिए देते हैं ताकि आप उनको पता चले डिफरेंट आपके उसके होते हैं ना, बोर्ड्स के पेपर्स होते हैं, ठीक है। जो FBIAC से एफिलिएटेड होते हैं, वो डिफरेंट बोर्ड के, मतलब डिफरेंट होते हैं ना स्कूल्स के। तो वो फिर क्या करते हैं, वर्जन नंबर देते हैं। यानी एक स्कूल का एक वर्जन नंबर होता है पेपर का, दूसरे स्कूल का दूसरा वर्जन नंबर होता है। तो ये कंप्यूटराइज चेकिंग होती है, तो उससे ये फायदा होता है कि इनको, मतलब वो जैसे ही वर्जन नंबर डालते हैं तो वो सारे उसी की लिस्ट तैयार हो जाती है कि इस स्कूल के जो ये बंदे हैं, उनके ये वाले पेपर हैं, ये रोल नंबर हैं जो इस स्कूल के अंडर आते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या, हाँ ऑफ कोर्स, हर स्कूल के लिए अलग होता है। तो बनते होंगे, क्योंकि आपको पता है। और एक एक पेपर जो होता है वो तो वो नहीं होता, एक पेपर तो नहीं बनते, तो चार चार पेपर बनते हैं। आपने देखा होगा कि जो इम्प्रूवमेंट के देते हैं, जो सप्ली के देते हैं, उनके पेपर्स अलग होते हैं और ये वाले पेपर्स अलग होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, नहीं ऐसे नहीं होता, एक ही पेपर होता है, एक उसका। जो FPIAC वालों की जितनी भी एफिलिएशन होती है, वो मोस्टली या एक तरह का देते हैं या दूसरी तरह का देते हैं। अब इतनी डिटेल मुझे नहीं पता कि उनका क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि मैंने तो बोर्ड में काम नहीं किया हुआ ना, मुझे तो आइडिया नहीं है। लेकिन ये जस्ट इंफॉर्मेशन है कि वो वर्जन नंबर इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने रेफर करना होता है। जाहिर है, उन्होंने पूरी पूरी लिस्टें बनानी होती हैं, उन्होंने हर स्कूल का लिखना होता है, तो उनके पास इंफॉर्मेशन आती है ना, फिर इस तरीके से एक रिकॉर्ड होता है ना। आपने देखा होगा कि जब आप लोगों की क्लासेस में ग्रुप्स बनते हैं या आपके सेक्शंस बनते हैं, तो ए सेक्शन, एक सेक्शन को ए नाम दिया जाता है, दूसरे को बी, तीसरे को सी। क्यों दिया जाता है? ताकि आइडेंटिफिकेशन आसान हो ना। तो आपने वर्जन नंबर को, बबल को फिल करना होता है, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होता है, तो जहां वन होगा वो बबल फिल होगा, जीरो वाला जीरो पे फिल होगा, वन वाला वन पे होगा, वन वाला वन पर होगा। जो रोल नंबर दिया जाएगा इसी तरह रोल नंबर भी लिखा जाएगा, और वही बबल्स फिल होंगे, ठीक है। अच्छा, सात आप लोगों को कितने ये ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, लेकिन आपके रोल नंबर हमेशा 6 नंबर के होते हैं, 6 डिजिट्स के होते हैं। ना, हमें इन पेपरों में 8 दिए हुए थे। अच्छा, लेकिन वैसे नॉर्मली जो है ना 6 या 7 होते हैं, लेकिन कभी कभी 6 भी दिए जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह होता है कि उनके कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वो फिर एक ही बार में रोल नंबर की ये जगह बना देते हैं। तो याद रखिए, रोल नंबर हमेशा कभी फर्स्ट को छोड़कर, अगर 6 अगर आपको डिजिट वाला रोल नंबर मिलता है, तो पहले से स्टार्ट करना होता है, यहां से लेके आगे तक फिल करना होता है। पहले वाले को कभी भी एम्प्टी नहीं छोड़ते, ठीक है। मैं आखिरी वो वाला, हमें ये जो नहीं हो रहा हमारे इसमें बताया था उन्होंने कि हमने हमारा 5 नंबर का रोल नंबर है ना, 16323। तो उसमें हम्म 8 की जगह दी हुई थी, तो वो कहते पहले वाले में ना सारे में जीरो को फिल कर दो। जीरो कर दिया था नहीं, सारा। अच्छा नहीं, हमें तो जो बताया गया है कि वो हमेशा यही होता है कि पहले वालों में फिल किया जाता है, एंड वाले छोड़े जाते हैं। क्योंकि आप देखें, जिसके 7 डिजिट नंबर है, अब जैसे जी। कैंडिडेट ज्यादा है ना, तो जी आपके तो कैंडिडेट तो बहुत ज्यादा होते हैं, 6 डिजिट से ज्यादा होते हैं, 7 डिजिट जी। तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए फिर क्या होता है वो, कि वो क्या करते हैं कि वो फिर उनको वो उतने डिजिट का रोल नंबर देते हैं, तो फिर वो सारा फिल करते हैं। जी अयान, आप क्या कह रहे हैं? नो मैम, वो कह रहे हैं मैम फर्स्ट वाले एम्प्टी रखते हैं। नहीं, आप लोगों को ऐसे बताया बेटा, फर्स्ट वाले एम्प्टी नहीं रखे।
अच्छा चलो, हर स्कूल का अपना तरीका होता है, लेकिन हमें तो यही बताया गया है कि हमेशा यहाँ स्टार्ट में लिखा जाता है, एंड में नहीं होता, क्योंकि डिजिट्स जिसके जितने होते हैं ना रोल नंबर के। फिर अब अच्छा मुझे ये बताइए, अगर जो कैंडिडेट है उसका 7 डिजिट का नंबर है, तो वो पहले वाले पूरे तो नहीं छोड़ेगा जिसका 6 डिजिट का है। आप 1 2 3 स्टार्ट करोगे तो पहले से लिखोगे ना। चलो ये तो फिर आप उधर से इन्विजिलेटर से भी पूछ सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन नॉर्मली हमें यही बताया जाता है कि पहले वाले फिल किए जाते हैं। बाकी आपको जो टीचर्स ने बताया आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। तो वो बेटा आपके टीचर्स ने ऐसे बताया, वरना नॉर्मली ऐसे नहीं होता, क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा होते हैं इसलिए वो एक ही रोल नंबर का साइज छोड़ते हैं। समझ आ रही है? 7 डिजिट तक जिनके जितने डिजिट्स होते हैं वो उसी हिसाब से फिल करते हैं। ठीक है ना? तो अभी इस पे हम टाइम नहीं जाया करते, हम नीचे जाते हैं पेपर पर। अच्छा, fill the relevant bubble against each question. The train had already left. Which tense is used in this sentence? Present perfect, past perfect, present continuous, past continuous. पास्ट पर। Past perfect जी। और साथ क्या कहते हैं? एंड अयान? अच्छा अयान, सेम बी ऑप्शन, यस और नो? नोड योर हेड। अच्छा, यस, ओके जी, ठीक है, पहले का ठीक है, पास परफेक्ट है। Napoleon's army was finally defeated at Waterloo. The underlined word is an example of common noun, abstract noun, collective noun, proper noun. मैम कलेक्टिव नाउन होगा ना? जी, ठीक है, हम्म। साथ ठीक कह रहे हैं। अब्दुल्ला आप कैसे बेटा? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, सही कहा है। जब आप एक वर्ड यूज करते हो कलेक्शन के लिए, ठीक है, तो आर्मी चूंकि कलेक्शन ऑफ फौजी होता है, ठीक है, जो सोल्जर्स होते हैं, तो इसलिए इसको आर्मी कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन। आई एम लुकिंग फॉर समवन डैश कैन वॉच माई डॉग while I am on vacations. Choose the best मैम answer to complete the who, who के- that, which या what. who क्यों बेटा? मैम वो पर्सन के लिए यूज होता है, बाकी उसमें पर्सन को के लिए नहीं यूज होता। नहीं, that भी तो यूज होता है पर्सन और उसके लिए, मैम वो दोनों फिर के एक से लिए। ज्यादा के लिए यूज हो जाता है। आप ठीक कह रहे हैं, दैट भी यूज हो सकता है, लेकिन दैट उस सेंस में यूज होता है जब आपके पास जो सब्जेक्ट होता है वो क्लियर नहीं होता कि वो मेल है, फीमेल है, इंसान है, जानवर है, क्या। यहाँ तो आई लिखा हुआ है, तो जब आपके जी पास सब्जेक्ट आपको पता है ह्यूमन है, तो फिर हु यूज होगा, दैट यूज नहीं होगा। ठीक है? जी। जब क्लियर ना हो, समवन लिखा हो, तो फिर भी वो हमें पता है ह्यूमन है। ठीक है? तो अब यस। फिर जब आपके पास क्लियर ना हो सब्जेक्ट, तो फिर आपने यहाँ दैट लगाना होता है। Choose the best answer. I am tired. I dash for 3 hours. Had studied, had been studied, will be studying, shall study. मैम हैव बीन स्टडीइंग। अच्छा, ठीक है। एन अब्दुल्ला क्या कहते हैं? हैव बीन स्टडीइंग। एन अयान क्या कहते हैं? बी। जी। क्यों बेटा आप लोगों ने हैव बीन क्यों सेलेक्ट किया, हैड स्टडीड क्यों नहीं सेलेक्ट किया? मैम स्टडी फॉर 3 आवर। मैम 4 3 वो क्या कहते हैं उसके लिए आई एम टायर्ड आई हैड स्टडीड अगर होगा ना, तो हम्म। 4 3 आवर्स उसमें नहीं आएगा, तो हैव बीन स्टडीइंग तो 4 3 आवर्स से सेंस बन रही है। अच्छा, नहीं, मैं इसकी आपको रीजन बताती हूँ। देखें, ये वो कह रहे हैं आई एम टायर्ड, मैं टायर्ड हूँ। क्यों टायर्ड है? आई डैश फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से क्या कर रहा हूँ? हैव बीन स्टडीइंग, वो यहाँ टाइम दिया हुआ है, ड्यूरेशन दी हुई है, प्रेजेंट का भी बता रहे हैं, और जाहिर है आई एम टायर्ड, मैं टायर्ड हो गया हूँ, तो ये रीसेंट एक्टिविटी उसने की है इसीलिए टायर्ड हो गया, तो इसलिए यहाँ पर है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। हिज बॉडी वॉज शेकिंग विथ फ्यूरी। राइट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, रेज, अर्थक्वेक, कामनेस और फियर। मैम रेज। यस, एंटोनिम। नहीं नहीं, फिर मैम रेज। ठीक है। जी साहब, आप क्या कहते हैं? मैम कामनेस या फियर में से होगा फिर कामनेस। फियर तो नहीं हो सकता, क्योंकि फियर तो जो है वो कामनेस। डर, डर को कहते हैं। तो फ्यूरी कहते हैं गुस्से में जब होते हैं, रेज में होते हैं, तो इसका अपोजिट काम होगा जब आप ठंडे होते हो। अर्थक्वेक तो जाहिर है हो ही नहीं सकता। द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज सो मच दैट ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इज टू लिव विद इन इनकम, बाय फूड, स्पेंड मनी, लिव अ लाइफ ऑफ लग्जरी। इसका क्या मतलब है? टू मेक बोथ एंड्स मीट।
मैम टू लिव विद इन इनकम। वेरी वेल डन। आप क्या कहते हैं अब्दुल्ला? अच्छा, वेरी गुड। यस अयान, वेरी वेल डन। बाय फूड तो जाहिर है वो तो सिंपल है कि फूड खरीदना वो एक एक्टिविटी है, और वो इस इडियम का मतलब भी ये नहीं है, इसी तरह बाकी भी नहीं है। इसका मतलब होता है कि जब आप अपनी तनख्वाह के अंदर गुजारा करते हो, ठीक है। जी। अच्छा जी, जैसे हम कहते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पुअर नाउ अ डेज टू मेक बोथ एंड्स मीट। ठीक है, उसके लिए मुश्किल हो गया, आजकल गरीब के लिए बहुत मुश्किल हो गया ना। अच्छा जी, ही इज अ चिकन एंड कैन नॉट फेस ए डिफिकल्टी। अब देखें, अब हमें अगर आपको नहीं समझ आ रही कि चिकन का क्या मतलब है, आप आगे बढ़े, एंड कैन नॉट फेस अ डिफिकल्टी, तो इसका जी मैम। मतलब क्या हुआ? इन दिस और सेंटेंस चिकन रेफर्स टू डैश पर्सन, इनोसेंट, कावर्डली, हार्मलेस और फुलिश। मैम कावर्डली। कवर्डली, हाँ जाहिर है वो डिफिकल्टी को फेस ही नहीं कर सक रहा, तो कवर्डली कहते हैं जो बुजदिल होता है। इनोसेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि डिफिकल्टी इनोसेंट भी तो फेस कर सकता है। और हार्मलेस तो जाहिर है वो जरूरी तो नहीं हार्मलेस है तो बुजदिल भी हो, और फुलिश तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा जी, विच वन ऑफ द मॉडल वर्ब्स यूज्ड इन द गिवन सेंटेंसेस शोज द फंक्शन ऑफ लाइक्लीहुड? डू यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि लाइक्लीहुड का क्या पर्पज है। मैं पहले बता देती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जहां पर आएगा ना मॉडल वर्ब विच शोज द फंक्शन ऑफ लाइक्लीहुड, लाइकली किसको कहते हैं, लाइक किसको कहते हैं, लाइक्लीहुड किसको कहते हैं? लाइक्लीहुड कहते हैं जब वो आपसे आपके ओपिनियन से मैच करता है, यानी आप उस चीज पे कंफर्म होते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाती हूँ, इफ यू हैव पेंसिल और पेपर राइट इट डाउन, कि आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे। हम ले आऊं? इंडिकेट, जी जी ले आइए। नहीं अयान, यू आर नॉट करेक्ट बच्चे, दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ओके। I'll first let me explain this likelihood function of modal verb, then you will be able to understand it. Okay, and wait. Let Saad come then. जी मैम। अच्छा जी, लिखिए। They indicate speakers. Abdullah, write it down. They indicate speakers' personal opinion about truth or likelihood of something. It conveys, इट में आपके पास मैं आपको एक मॉडल वर्ब देती हूँ, शैल। इट की जगह पे लिखें शैल, SHALL, शैल कन्वेज likelihood when it is used with proper subject। ठीक है। अब शैल देखें कितनी स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड जाहिर करता है ना, जब मैं आपको कहती हूँ कि यू शैल बी देयर बाय 9, ठीक है, या योर क्लास शैल बी स्टार्टेड एट 9:30 एग्जैक्ट। अब यहां पर मैं अपना ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे रही हूँ कि ऐसा है तो ऐसा होगा। जी मैम। ठीक है। इसी तरह वुड भी लग सकता है, कुड भी लग सकता है। आपने अंडरस्टैंड करना है कि वहां पर फंक्शन ऑफ लाइक्लीहुड कितना स्ट्रांग है। अब यहाँ बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको 100% चांसेस है कि ये काम होगा। मैम नाउ सी चेक इट मैम। आउट। यू मस्ट। नहीं बेटा, यहाँ तो वो एक रिक्वेस्ट, मतलब उसको सख्ती से एडवाइस कर रहा है ना। अब उसको श्योरिटी तो नहीं है कि वो हैंड्स धोएगा या नहीं धोएगा कुकिंग से पहले। आपने वो देखना है जिसमें श्योरिटी है कि वो काम होगा कि नहीं होगा। नाउ चेक द फर्स्ट वन, माय सिस्टर कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। नाउ इट इज द एबिलिटी शी कैन स्पीक, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी आइदर शी स्पीक्स इट और नो। राइट, समझ आ जी रही है मैम। साद अब्दुल्ला? मैम फिर डी लिखिए। होगा थर्ड। सेकेंड वन इज शी कैन प्ले द फ्लूट एंड गिटार। वो प्ले तो कर सकती है लेकिन हमें नहीं पता इधर शी इज गोइंग टू प्ले और नो। यू मस्ट वॉश योर हैंड्स, अब हमने कह तो दिया है कि यू मस्ट वॉश योर हैंड, लेकिन नाउ इट्स अप टू दैट पर्सन हु इज गोइंग टू कुक। ठीक है, आइदर ही वॉशेज हिज हैंड और नो। थर्ड वन है माई बेबी ब्रदर शुड बी asleep बाय नाउ। वो कह रहा है उस वो सो जाना चाहिए बाय नाउ, अभी तक तो वो सो गया होगा, यानी स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड कहाँ है? डी पर है। साथ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो जो सही है करेक्ट मैम। आंसर है वो आपके पास आ गया डी। सही है मैम। ठीक।
नेक्स्ट वन है ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल preposition in, at, with or on. ठीक है, इन अब्दुल्ला कह मैथमेटिक्स। रहे इन, अच्छा आप कह रहे हैं साथ इन है, और अयान एंड क्या भी हो कहते सकता हैं? अच्छा अयान क्या कहते हैं? अयान बेटा आप बताइए, ए बी सी या डी? एन, अच्छा नहीं, अनफॉर्चुनेटली साद और अयान दोनों गलत है। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। मैं बताती हूँ क्यों एट है। आया। एट तब आया क्योंकि आपके पास एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप ये तो नहीं कह सकते मैथमेटिक्स के अंदर आप अच्छे हो, मैथमेटिक्स में अच्छे हो ना। आप सब्जेक्ट के बारे में बात करें, कोई स्पेसिफिक चीज है, ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, तो इसलिए एट आता है। इन हमेशा तब आता है जब एक वास्ट किस्म के बारे में चीज में बताया जाता है। मैथमेटिक्स तो एक सब्जेक्ट है जस्ट, ठीक है। तो हमेशा जब सब्जेक्ट्स के बारे में मेंशन किया जाता है या कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन होती है, तो उनके साथ हमेशा एट लगता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ एट आएगा। अच्छा फिर है वी शैल मीट डैश द एयरपोर्ट, यूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पर फिर एग्जैक्ट है, तो क्या आना एट चाहिए? एट एट। वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज प्लीज टेक द डैश ऑफ द टू रूट्स, चूज द बेस्ट आंसर। आप देखिए यहाँ पर कंपैरिजन किसका है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है या पॉजिटिव है? टू रूट्स में से प्लीज टेक द डैश वन, शॉर्टर, शॉर्ट, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट। शॉर्टर है। देखिए तो मैम साथ शॉर्ट गौर, ये साथ गौर कीजिए बेटा। प्लीज टेक द डैश ऑफ द टू रूट्स। अब दो के दरमियान कंपैरिजन है, जब दो के ओके दरमियान कंपैरिजन होता है तो फिर कंपैरेटिव डिग्री लगती है, और कंपैरेटिव में क्या लगता है? ई आर लगता है, ई सही है। एस टी नहीं लगता, ठीक है। शॉर्टर ओके आएगा, प्लीज टेक द शॉर्टर ऑफ द टू रूट्स। अगर यहाँ सही होता है। प्लीज टेक द डैश रूट्स, तो फिर आप कहते शॉर्टेस्ट, सही ठीक है। है। तो अभी चूंकि दो के दरमियान है, तो दो के दरमियान जब भी होगा कंपैरिजन, तो शॉर्टर कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। और मोर शॉर्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि शॉर्ट जो है वो वन सेलेबल वर्ड है, उसके साथ मोर नहीं लगता, ई आर लगता है या ई एस टी लगता है, ठीक है। हाँ। समझ आ गई। और शॉर्ट पॉजिटिव है तो शॉर्ट लग ही नहीं सकता। अब्दुल्ला व्हाट आर यू डूइंग बच्चे? अच्छा जी। फिर है हर पर्स वॉज डैश बाय मी, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर पैसिव वॉइस। फाउंड बाय मी, फाइंड बाय मी, फाउंडेड बाय मी, फाइंडिंग बाय मी। अयान अली आप भी आंसर लिखिए बच्चे। अच्छा साउंड बाई होगा ना। व्हाट अबाउट फाउंड? फर्स्ट लग गया मैम। अच्छा वन बाय वन बच्चे, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर आंसर्स, प्लीज स्पीक वन बाय वन, ठीक है जी। अब्दुल्ला बताइए। ही माई पर्स, फाउंड आएगा। व्हाई नॉट फाउंडेड? फाउंडेड थर्ड फॉर्म नहीं है फाउंड की? क्या मतलब अब्दुल्ला, कौन सी कंपनी? तो आप कह ठीक रहे, लेकिन आपको समझाना नहीं आ रहा। मैं अभी समझाती हूँ जी। बेटा आप लोगों ने करेक्ट बताया, ए ऑप्शन करेक्ट है, फाउंड। क्योंकि देखो फाउंड और फाउंडेड दो अलग वर्ब है। फाउंडेड निकला है फाउंड से, जिसका मतलब है टू मेक समथिंग, जैसे पाकिस्तान वाज फाउंडेड बाय कायदे आजम, ठीक है। मैंने कहा ना, यस मैंने यही जी मैं समझ गई। मैंने कहा भी कि आपने ठीक बताया, लेकिन आपको समझाना नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं समझा रही हूँ ताकि साथ को भी पता लग जाए और अयान को भी पता लग जाए और आपको भी बोलना आ जाए कि आपने कैसे समझाना है किसी को, ठीक है। तो जो फाउंड है ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ चूंकि फाइंड है, हर पर्स वाज फाइंड, अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो फाइंड लगता, तो हमने तो फाइंड की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड है, थर्ड भी फाउंड है। तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है, फाउंडेड करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये फाउंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म। समझ आ गई यस साथ? और अयान यस अली मैम। बेटा आपको भी समझ आ गई, आपने भी फाउंडेड लिखा था, इसलिए ये इनकरेक्ट है। और फाइंडिंग तो जाहिर है पार्टिसिपल है, इसलिए वो आ नहीं सकता प्रेजेंट पार्टिसिपल। A rolling stone gathers no moss, underlying part is present participle, adverb, infinitive और past participle। मैम प्रेजेंट पार्टिसिपल। गुड। अब्दुल्ला आप बताइए। अच्छा ठीक है, अयान अली आप भी आंसर लिखिए बेटा, और अब्दुल्ला मुझे बताएंगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे है।
जी अयान, अब्दुल्ला बताइए। ठीक है अयान, आपका ठीक है बेटा। अयान, डिड यू गेट मी के वाई योर आंसर वाज इनकरेक्ट ऑफ 12 एमसीक्यू फाउंडेड नहीं है? ओके ठीक है जी। अब्दुल्ला बताइए, वाई यू हैव सेलेक्टेड द फर्स्ट ऑप्शन? है, आपको कैसे पता चला? रोलिंग में तो कोई टेंस ही नहीं है बेटा। नहीं अब्दुल्ला। ठीक है, अच्छा आपने तुक्का लगाया है। चलो बेटा, याद रखिए जहां पर आईएनजी फॉर्म आती है, अगर उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर उसके आगे फंक्शंस चेंज होते हैं कि वो एडजेक्टिव का काम देता है या नाउन का काम देता है, लेकिन वो होता प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसलिए यहाँ पर इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल बी, विल बी। ठीक है, तो इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। समझ आ गई? इन्फिनेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल इसलिए नहीं क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। एडवर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि ये एडवर्ब का काम नहीं दे रहा, ये हमें नाउन के बारे में बता रहा है, गैदर्स के बारे में नहीं बता रहा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ठीक है हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? मैम, सिंपल। सिंपल है। अच्छा, अब्दुल्ला क्या कहते हैं और रयान क्या कहते हैं? ठीक है, क्योंकि इसमें कोई आपके पास कंजंक्शन नहीं लगा हुआ, ना कोऑर्डिनेटिंग ना सबऑर्डिनेटिंग। ईच अच्छा, हैंड हैज 5 फिंगर्स। द अंडरलाइन पार्ट इज एन एडजेक्टिव ऑफ मैनर, नंबर, क्वालिटी और टाइम। नंबर ही है, ऑप्शन ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलें बच्चे, अब आपका टाइम हो गया है। इंशाल्लाह हम जो है ना, कल मैं कोशिश करूंगी कि हमारा ये सारा पेपर हल हो जाए। इसके अलावा भी एक पेपर है जो थोड़ा हार्ड है, ठीक है, जो बोर्ड में ठीक आया है। नहीं है लेकिन वो बोर्ड के लिए सिलेक्ट हुआ था। हम वो दोनों पेपर कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि वो डिस्कस हो जाए, फिर परसों से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। ठीक है, आप लोग अपना टाइम मत जाया कीजिएगा प्लीज। आप टाइमली आ जाइए करें क्लास में, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम थोड़ा है, तो फिर आप लोगों का कोर्स जो है ना वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस भी करनी है। ओके बच्चे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ ओके, मैम। अल्लाह हाफिज। अब्दुल्ला, आप क्यों हंस रहे हो? पहले मुझे बताओ, हंस क्यों रहे हो? अच्छा ठीक है, और आपके मैं कल दोनों पैराग्राफ जो है ना वो आपके चेक करूंगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।